आवाज आ रही है मेरी सबको? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। 13 ही लोग हैं, बाकी कहाँ चले गए? सो के है क्या सभी? हम तो क्लास लेंगे बाबा। एमसीक्यूज करे 2 दिन के बचे थे हमारे, करना एमसीक्यूज। रिप्लाई करो, एमसीक्यूज लेंगे या नहीं? ओके, हाँ बोल रहे हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताइए क्या आंसर है इसका। The animals in which the cells are organized into structural and functional units as tissue, organ and organ system are grouped under which subkingdom? बोलो। बोलो क्या आंसर है। जल्दी बताओ भाई। बी श्याम, वेरी गुड, करेक्ट। बी है इसका आंसर, यू मेटाजोआ। ठीक है, यू मेटाजोआ, बी इज करेक्ट आंसर। अकेले श्याम ने ही आंसर किया है, बाकी क्लास में है या नहीं है? फोन ऑन रख के कहीं चले गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is radial symmetry. Which of the following set of animals have radial symmetry? अरे वाह, श्याम बहुत सही से आंसर्स दे रहे हैं। यस, सी इज द करेक्ट आंसर बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे? हाँ, गुड मॉर्निंग, आंसर करो। नेक्स्ट बताओ, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन। Closed circulatory system is found in. No, no, not B. Sham, very good Sham beta. Earthworm. Earthworm is the correct answer. A is the correct answer. A is the correct answer. Can you see the cursor? A is the correct answer. Earthworm. Next. Sponges are most primitive multicellular organism with which of the following level of organization? Sponges में कौन से level का organization होता है? सेल्यूलर लेवल, वेरी गुड, सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। यस आशुतोष, करेक्ट है, सेल्यूलर लेवल। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग ऑफ द एनिमल्स, देयर बॉडी सिमेट्री एंड सीलोम। बताइए इनमें से कौन सा
इनकरेक्ट है। थ्री, यस थ्री। नो नो नॉट थ्री। नयन किसका आंसर बताया आपने? नॉट थ्री बेटा, नॉट थ्री। Everything is correct, just annelids. हाँ, yes, Ashray, 4. Annelids has the radial, not radial symmetry. Annelids have bilateral symmetry. Okay. Yes, 4 is the correct answer. Next question. Incomplete alimentary canal with blind sac body plan is present in. Yes, Sham. C. Very good. Yes, Yash. C is the correct answer. Yes. Mohit, Firewolf girl. Okay, C is the correct answer. Yes, Himanshu correct. Now, a coelomate diploblastic animal phylum is a coelomate and diploblastic. Yes, Sham has given correct answer. No, Shreya, not C. Again, निडेरिया। इसकी इसी को हम सीलन ट्रेट्स भी बोलते हैं ना। निडेरिया इज द करेक्ट आंसर। Yes, B. Yes, firewolf girl. Unicellular eukaryotes are grouped in. Unicellular eukaryotes are grouped in. It is silent. Okay. बोलो। Unicellular eukaryotes. B. Yes, protista. Very good. B is the correct answer. In amoeba and paramecium, the cell organelle for osmoregulation is. osmoregulation के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल अमीबा और पैरामेशियम में पाया जाता है? अरे वाह। सी, contractile vacuoles. Yes, contractile vacuole is the correct answer. Which class does the malarial parasite belongs to? Malarial parasite belongs to which class? No. D. Yes, Himanshu D. Very good. D is the correct answer. Nayan, C is not the correct answer, beta. D is correct answer. Yes. Sham, Yash have given correct answers. Firewolf girl, Ashutosh, Yash. Okay. Trypanosoma belongs to which of the following group? Trypanosoma belongs to which of the following group? Mastigophora, Sarcodina, Sporozoa, Ciliata. Which group? A. Ashray A. Sham A. Okay. Again, Nayan A. Yes, A is the correct answer, beta. Mastigophora. A is the correct answer. Again, next question. Which of the following protozoan causes African sleeping sickness? ये कल किए थे हमने। D. Yes, yes, Sham. Very good. D is the correct answer, beta. Ashray, Likhit. Yes, D is the correct answer.
Yes, Himanshu, Yash, B is the correct answer. Last question, okay? Last question. Protozoa are classified on the basis of. प्रोटोजोआ को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है? लास्ट क्वेश्चन है. ओके, लिखित ए, श्याम ए, यश ए. यस, ए इज द करेक्ट आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर. हाँ हाँ हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. ए इज द करेक्ट आंसर बेटा. चलो आगे बढ़ते हैं. नेहा, नेहा इज हियर. यस, ए इज द करेक्ट आंसर. चलो स्पॉन्जेस पढ़े हमारा पोरिफेरा. हाँ, हो गए हो गए हो गए. बाकी के नेक्स्ट इसके मैं नेक्स्ट इसमें लगाऊंगी क्वेश्चंस. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गया तो कोई बात. ठीक है, आज हम देखेंगे पोरिफेरा या फिर जिसे हम स्पॉन्जेस बोलते हैं. गुड मॉर्निंग नेहा. ठीक है, सबसे पहला पोरिफेरा शो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी हमने क्वेश्चन लगाया सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक यानी क्या था, मैंने क्या बताया था आपको? डिप्लोब्लास्टिक क्या था? किसका इंटरनेट प्रॉब्लम है? मेरा? मैं कॉलेज में हूँ, कोई इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है आज. टू लेयर्स, हाँ, टू जर्म लेयर्स थे. डिप्लोब्लास्टिक इन द सेंस टू जर्म लेयर्स. ठीक है, बट एक्चुअली हमने यहाँ पे पोरिफेरा जो हमने बोला था वो डिप्लोब्लास्टिक नहीं था. ठीक है, उसमें सिंगल लेयर. मैंने आपको आज ही मैसेज किया था कि इट इज सिंगल लेयर. सिंगल लेयर. हम उसे जर्म लेयर में क्यों डिवाइड नहीं करते? हम इसे जर्म लेयर में क्यों डिवाइड नहीं करते? बिकॉज इट इज अ सेल्यूलर लेवल है ना, उसमें टिश्यूज नहीं है, इसलिए हम उनको जर्म लेयर्स में डिवाइड नहीं करते. तो ये डिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे मत लिखो. ठीक है, देन इट इज असिमेट्रिकल. ठीक है, इसमें सिमेट्री नहीं होती है. यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ सिमेट्री नहीं मिलेगी, कहीं और से अलग कहीं और से अलग होते हैं. ठीक है, इनमें सिमेट्री नहीं होती है. या फिर हो सकता है कि रेडियल सिमेट्री हो. ठीक है, अब रेडियल सिमेट्री यहाँ लिखा है, किसी किसी में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, तो उसका एग्जाम्पल्स आप लिखोगे ल्यूकोसोलेनिया एंड स्काइफा. ओके वेट. ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया एंड इट इज स्काइफा. SCHYPA. ओके, रेडियल सिमेट्री. ठीक है, स्पॉन्जेस हैविंग रेडियल सिमेट्री आर ल्यूकोसोलेनिया एंड स्काइफा. ओके, then again, study of sponges is known as parazoology. The branch that deals with the sponges is branch of science that deals with sponges is known as parazoology. ओके, हैबिटेट देखेंगे हम सबसे पहले कि ये रहते कहाँ हैं, कैसे रहते हैं. इज एक्वाटिक. चकलस कोई नहीं करेगा. ठीक है, एक्वाटिक. सीडेंटरी, स्पेलिंग SCHYPA. SCHYPA, स्काइफा. सबसे पहले बताओ ये साइलेंट गेमर कौन है? बातें फालतू की नहीं होगी. ठीक है, कमेंट्स में. सीडेंटरी होते हैं. सीडेंटरी इन द सेंस दे आर अटैच टू द सरफेस, दे आर नॉट मोटाइल. ओके, दे आर अटैच टू द सरफेस.
This is known as sedentary. It could be solitary or colonial. Okay, it could be solitary or colonial. Solitary in the sense एक तो सिंगल ही पाए जाएंगे या फिर एक कॉलोनी में पाए जाएंगे, यानी एक सिंगल हो सकते हैं या फिर बहुत सारे कॉलोनी में हो सकते हैं. कॉलोनी इन द सेंस मल्टीपल, लाइक दिस, मल्टीपल. ओके, सिंगल जगह पे मल्टीपल पाए जाते हैं हमारे स्पॉन्जेस. इतना क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े. रिपीट बेटा. पॉरीफेरा जो है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, ठीक है. डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता. हैबिट्स रिपीट करो. एक्वाटिक होते हैं हमारे जो पॉरीफेरा है, एक्वाटिक होते हैं यानी कि वाटर में पाए जाते हैं. सिडेंटरी होते हैं. सिडेंटरी इन द सेंस दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट. ओके, दे आर अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर substance. Okay, they are not motile. This is known as sedentary. Solitary और colonial, either वो अकेले पाए जाते हैं या फिर एक कॉलोनी या ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है. Okay, can you see this diagram? जब हम स्पॉन्जेस को देखते हैं तो हमें यहाँ पे पोर्स देखने मिलते हैं, ठीक है. उनके बॉडी पे परफोरेटेड पोर्स होते हैं. इन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया. Ostia. The pores are known as ostia. See this pores. These pores are known as ostia, beta. Okay. Okay. This outer layer having a flat cells. Pen, I guess I need to change the pen. This outer layer having flat cells are known as pinacocytes. ठीक है. This outer flat cell is known as pinacocytes. ठीक है. This inner cell is known as choanocytes or collar cells. See, is given here. Choanocytes or collar cells. ठीक है. This contains flagellated cells here. This side, यहाँ पे ऐसे flagellated cells present होते हैं. Entire region flagellated cells. यहाँ क्या होता है, हमारे जो स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर को ऑस्टिया से अंदर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है. फ्लैजिला जो होता है वो इस तरह से बीट करता है ताकि एक वाटर करंट प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है. यूनिडायरेक्शनल, दैट टू यूनिडायरेक्शनल. ओके, फ्लैजिला जो है वो बीट करता है ताकि एक यूनिडायरेक्शनल वाटर करंट बन जाए. उसके बाद यहाँ से पानी आने के बाद, यहाँ से जो हमारा वाटर आता है, H2O आता है, यहाँ से H2O आ रहा है, वो क्या करता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चले जाता है, ठीक है. ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चले जाता है. इतना क्लियर है? किसी को रिपीट करवाओ. देखो, हमारे जो स्पॉन्जेस है, हाँ, हमारे जो स्पॉन्जेस है उसके ऊपर कैसे रहता है, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. उनके बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है. वो पोर्स जो रहते हैं उन्हें ऑस्टिया बोलते हैं. यहाँ पे हमारे 2 लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, 2 लेयर्स, ठीक है. जो अपर वाले जो सेल्स है वो काफी फ्लैट होते हैं, जैसे आउटर बॉडी वॉल होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, पिनाकोसाइट्स बोलेंगे. अंदर की तरफ फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और वो लेयर को हम क्या बोलेंगे, क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स बोलेंगे, ठीक है. ये फ्लैजिला क्या करते हैं, इस तरह से एक वन डायरेक्शन में बीट करते हैं और एक वाटर करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. अब यहाँ से H2O आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे फ्लैजिला है, इसको बीट करेंगे ताकि H2O ऊपर की तरफ मूव हो जाए, ठीक है. ऊपर की तरफ मूव होने के बाद ये ऑस्क्यूलम के थ्रू, जो कि काफी बड़ी ओपनिंग होती है, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चले जाते हैं, ठीक है. ये एक्वाटिक है ना, इसलिए ये पानी के थ्रू ही लेंगे, हमारा फूड वगैरह सारी चीज उनकी वाटर के थ्रू ही होगी, ठीक है. अब यहाँ ऑस्क्यूलम में क्या होता है, सीव प्लेट होते हैं. हमने क्या पढ़ा था, सीव प्लेट, कहीं तो भी पढ़ा था हमने. सीव प्लेट क्या होते हैं,
सीव प्लेट होता है। सीव प्लेट यानी क्या होता है? हमारे फ्लोएम में भी थे ना सीव प्लेट्स, जो छन्नी का काम कर रहे थे, है ना? हमारे फ्लोएम में भी सीव प्लेट्स थे जो छन्नी का काम कर रहे थे। ऐसा ही एक फिल्टर यहाँ ऑस्क्यूलम में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम स्पॉन्जेस को फिल्टर फीडर्स भी बोलते हैं। Therefore, sponges are also known as filter feeder. ओके हाँ श्याम, फ्लोएम में होते हैं। इतना क्लियर है? नेक्स्ट चेंज करो स्लाइड में। सी द स्पॉन्जेस, है ना? किसी की बात कर रहे थे हम। ये जो पोर्स दिख रहे हैं आपको, ये हमारे जो है, ये जो पोर्स है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑस्क्यूलम। यहाँ से हमारे H2O जो है पोर्स के थ्रू अंदर की तरफ जाएंगे। ये जो है, ये कैविटी है हमारे स्पॉन्जेस की कैविटी है, बॉडी कैविटी। इसे हम क्या बोलेंगे? कैविटी को क्या बोलेंगे? हम स्पोंजोसिल बोलेंगे। ठीक है, द कैविटी इज नोन एज स्पोंजोसिल। और पैरागैस्ट्रिक कैविटी, इसी को हम और एक नाम देंगे, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। राइट इट डाउन, ये है नहीं आपके पास? ओके इसी को हम बोलेंगे पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ओके ठीक है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी में हमारा आएगा H2O। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहे होंगे ये जो हमारी लेयर है। ठीक है, ये लेयर को यहाँ पे हमने जूम किया है। ठीक है, यहाँ जूम करने के बाद आपको यहाँ क्या मिल रहा है? ये हमारे एक सेल्स है, फ्लैजिलेटेड सेल्स है हमारे। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? कॉलर सेल बोलेंगे। ठीक है, कॉलर सेल बोलेंगे। कॉलर सेल और जो हमारा एपिडर्मल सेल जो था, उसके बीच में आपको ये देखने मिल रहा है स्पिक्यूल्स, है ना? स्पिक्यूल्स देखने में, ये स्टार शेप येलो कलर के स्पिक्यूल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम होता है स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना हमारे स्पॉन्जेस को। ठीक है, ये हमारे स्पॉन्जेस को स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। इतना क्लियर है? उसके बाद यहाँ कॉलर सेल के बाद आपको एक ये छोटा सा ब्लू टाइप का अमीबा टाइप कुछ दिख रहा है, जिसे हम बोलेंगे अमीबोसाइट्स। ठीक है, ये अमीबोसाइट्स किस में काम करेंगे? ये अमीबोसाइट्स का काम ये रहेगा कि ये हमारे जो फूड मटेरियल्स उसे डाइजेस्ट करेंगे हमारे फूड मटेरियल को। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? बोलो मेरे को, या रिपीट करवाना है? रिपीट करूं कि ओके है? रिपीट, ओके। सी, सबसे पहले तो हमने देखा कि ये हमारा है एक स्पॉन्ज। ठीक है, ये हमारा एक स्पॉन्ज है। उसके बाद यहाँ जो कैविटी है, उसे हमने नाम दिया स्पोंजोसिल या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये हम जो पिछली डायग्राम में हम देख रहे थे ना, ये ऐसे वाले पोर्शन, ऐसे वाला पोर्शन, ये वाला, ये हमारा ऑस्टिया है। ये एक्चुअल में ऐसे दिखेगा, है ना? ऑस्टिया है। यहाँ से वाटर एंटर होगा हमारे स्पोंजोसिल में, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जाएगा। जैसे वाटर एंटर हो रहा है, वाटर के साथ साथ हमारे स्पॉन्जेस का फूड भी तो आएगा, बिकॉज वो नॉन मोटाइल है ना? वो तो वेट करेंगे कि कब कब हमारा फूड हमारे पास से गुजरेगा और हम उसे ट्रैप करें, है ना? वाटर के थ्रू ही इनका फूड भी अंदर चले जाएगा। ठीक है, वाटर के थ्रू इनका फूड भी अंदर चले जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा? ये जो फ्लैजिलास है, ये हमारे वाटर करंट को ऊपर की तरफ
मूव करवाएंगे, है ना, वाटर को ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे और ये हमारे ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। ये हमने कॉलर सेल को यहाँ जूम करके देखा है, तो ये जो है ये हमारा ब्लू कलर वाला कॉलर सेल विथ वन फ्लैजिला, है ना। यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है, यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है, ये हमारे हैं स्पिक्यूल्स। अब स्पिक्यूल्स क्या कराएंगे, हमारे स्पंजेस को स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये पोर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ऑस्टिया ही है, ठीक है, ये जो पोर हमें दिख रहा है वो ऑस्टिया ही है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखो, नेक्स्ट वाले डायग्राम में क्या दिया गया है, यहाँ जो है एक अमीबोसाइट दिया गया है। तो जो हमारा फूड आ रहा है, वाटर के थ्रू जो फूड आ रहा है वो अमीबोसाइट्स में आके ही डाइजेस्ट होगा, ठीक है, डाइजेशन के लिए आपका अमीबोसाइट ही है, ठीक है। सी, canal system is the characteristic feature of sponges, okay, remember this, characteristic feature of sponges। what canal system is characteristic feature of sponges, कहीं और देखने नहीं मिलेगा आपको characteristic feature sponges का, ठीक है। here it is given that by constant beating of flagella of choanocyte cell, that is collar cell, a water current is produced which has a fixed direction, है ना। ये जब बीट करेंगे, हमारे ये जो फ्लैजिलम है ये जब बीट करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक वाटर करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये वाटर करंट थ्रू ऑस्क्यूलम बाहर की तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, एवरीथिंग इज डन इन स्पॉन्जेस, ओके, एवरीथिंग इज डन लाइक दिस ओनली थ्रू कैनल सिस्टम। All exchanges between sponge's body and external medium are maintained by this current. Okay, canal system helps in respiration, circulation, excretion and nutrition. इतना clear है अभी? Everything is done by this canal system only in sponges. Okay? Okay, clear? Come on, next. See, digestive system, okay, digestive system is absent. Entire system is absent. But how digestion is done? Through amoebocytes, है ना, we've seen. See, this is food vacuoles. These are food vacuoles. These are food vacuoles. These are moved towards amoebocyte for digestion. ठीक है, these are moved towards amoebocytes for digestion. ठीक है, water transport is done through canal system only, ठीक है। उसी के थ्रू, वाटर के थ्रू ही उनको फूड मिलेगा बेटा, वो मूव नहीं कर सकते ताकि वो फूड बाहर जाके ढूंढ पाए। वाटर करंट के साथ जितना भी फूड आएगा उतना ही वो डाइजेस्ट करेंगे, उतना ही वो एब्जॉर्ब करेंगे, उतना ही उन्हें मिलेगा, ओके, ठीक है। इट इज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। नेहा क्या रिपीट करूं बेटा? See, digestive system is absent, okay, digestive system is absent, लेकिन खाना तो खाएंगे वो। खाना कहाँ से आएगा? हमारे ऑस्टिया में, हमारे यहाँ पे जो ऑस्टियास थे, यहाँ पे पोर्स जो प्रेजेंट थे, वहां से वाटर आ रहा था, वाटर के साथ साथ फूड भी आएगा, है ना, वाटर के साथ साथ फूड भी आएगा। फूड के साथ फूड क्या होगा, फूड हमारा जाएगा फूड वैक्यूल्स में, ठीक है, फूड वैक्यूल्स में ट्रैप हो जाएंगे हमारे फूड पार्टिकल्स और वो जाएंगे अमीबोसाइट्स की तरफ फॉर डाइजेशन, क्योंकि इसके अलावा और कोई डाइजेशन नहीं करवाएगा, ठीक है ना। उनको फूड की जरूरत तो रहेगी ना, दे आर एनिमल्स, मूव नहीं हो सकते तो क्या हुआ। तो ये हमारे ऑस्टिया के थ्रू आएगा, ठीक है। वाटर तो हमारा वापस ऑस्क्यूलम से बाहर चले जाएगा, लेकिन जो फूड है वो हमारे फ्लैजिलम जो है वो ट्रैप करके रख देंगे और यहाँ कॉलर सेल में से वो जाएंगे हमारे अमीबोसाइट्स में। इतना ठीक है। डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेल्यूलर है, यानी एक सेल के अंदर सेल्स में हो रहा है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इनसाइड
फूड वैक्यूल्स, है ना, फूड वैक्यूल्स के अंदर हो रहा है ये। प्रोटोजोन्स में भी हमने देखा कि ये फूड वैक्यूल्स में हो रहा है, ठीक है। फूड डिस्ट्रीब्यूशन इज ब्रॉड बाय वैंडरिंग अमीबोसाइट सेल्स, ठीक है। फूड, हाँ, तो अब ये यहाँ से हमारे अमीबोसाइट सेल है, ठीक है। यहाँ पे और भी तो सेल्स थे ना प्रेजेंट, हमने देखा था पिछले स्लाइड में, हमने देखा था यहाँ पे बाकी के सेल्स भी तो प्रेजेंट थे। तो ये जो है फूड यहाँ पे हमारा अमीबोसाइट ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंटायर बॉडी में, ठीक है। एंटायर बॉडी में हमारा अमीबोसाइट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रूट्स। सी, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है ये, यहाँ पे ये अमीबोसाइट्स है, ठीक है। ये अमीबोसाइट्स है, इसके आसपास के सेल्स है, वहां वो हमारा, वहां पे हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैनल सिस्टम फिर से एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। कैनल सिस्टम क्या होगा बेटा, सीधी सीधी बात ये है कि हमारे स्पॉन्जेस में पोर्स प्रेजेंट है, जिसे हमने बोला था ऑस्टिया, ठीक है। ऑस्टिया से हमारा वाटर आएगा अंदर, ठीक है। ऑस्टियस के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू हमारा वाटर आएगा अंदर। फ्लैजिलम ऐसे बीट करेंगे ताकि वो बाहर की तरफ मूव हो जाए ना, तो हमारा ये वे रहेगा, ठीक है। इस वे में हमारे वाटर का मूवमेंट रहेगा। वाटर के साथ साथ फूड भी आएगा, ठीक है, फूड भी आएगा, और वो जो फूड है वो हमारे कॉलर सेल ट्रैप कर लेंगे, अमीबोसाइट्स के तरफ भेज देंगे, यहाँ अमीबोसाइट्स को भेज देंगे। अमीबोसाइट डाइजेस्ट कर लेगा फ्रूट को और हमारे अदर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। इतना क्लियर है? See, circulatory system is absent. Again, it is done by canal system. ठीक है, circulatory system is absent. It is done by canal system. Then respiratory system is absent. respiratory system जैसे इंसानों में कैसे होता है respiratory system, है ना, लंग्स होते हैं, हमारा नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये सारी चीजें जो होती है, ऑर्गन सिस्टम, ये एब्सेंट होता है। किससे होता है रेस्पिरेशन? अगेन बाय कैनल सिस्टम, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहाँ से होगा? मेम्ब्रेन से उनके। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, एक्सक्रीशन इज डन बाय कैनल सिस्टम। ये भी हमने देखे, ये सारी चीजें कौन करेगा? कैनल सिस्टम ही करेगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट। अमोनिया इज द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। हियर अमोनिया इज द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज, ओके। अमोनिया इज द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, इट इज रिमूव थ्रू डिफ्यूजन। इतना क्लियर है? ओके, मेरे को रिप्लाई नहीं आ रही किसी के, फटाफट रिप्लाई दो। क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, नाउ स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रही थी आपको, स्पिक्यूल्स जो मैंने बताए थे, ये है वो स्पिक्यूल्स। ये है वो स्पिक्यूल्स जो क्या, कहाँ रहेंगे? यहाँ हमारे मिडल लेयर पे रहेंगे, ठीक है। मिडल लेयर जो है हमारे कॉलर सेल्स और एपिडर्मल सेल्स के बीच में रहेंगे, ठीक है। दिस स्पिक्यूल्स, दिस आर द स्पिक्यूल्स। ये क्या करेंगे? हमारे स्पॉन्जेस को स्केलेटल सपोर्ट देंगे, ठीक है, स्केलेटल सपोर्ट देंगे। अब ये इंटरनल है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि इट पोजेसेस इंटरनल स्केलेटन, ठीक है। दिस कुड बी कैल्केरियस और सिलिशियस, यानी कि ये कैल्शियम से भी बने हो सकते हैं एंड सिलिका से भी बने हो सकते हैं, ठीक है। इधर इट इज मेड ऑफ कैल्शियम और इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है। या फिर स्पॉन्जन फाइबर्स करके भी वो प्रेजेंट रहते हैं, स्पॉन्जन फाइबर्स, है ना, फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट। ये इकलौता हमारा एनिमल किंगडम में का ये है जिसमें एनिमल है जिसमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट रहता है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, लिखना था आपको ये, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट इन स्पॉन्जेस, ओके, ओनली इन स्पॉन्जेस।
अभी अपने को फास्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारा चैप्टर बाकी है। स्पिक्यूल्स डिफरेंट क्या बेटा, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, वो बस उनका काम ये है कि वो स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स रहते हैं। स्पॉन्जेस सिर्फ एक ही नहीं होता ना, अलग अलग भी होते हैं बेटा, स्पीशीज अलग होती है इनकी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा आपको स्पॉन्जेस में, ठीक है, बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा ये डायग्राम हमने ऑलरेडी कहीं पे तो भी देखी है ना, ये कहाँ देखी थी हमने, बडिंग में देखी थी ना, बडिंग में, इंटरनल बडिंग, अगेन इंटरनल बडिंग में देखा था। इंटरनल बडिंग में अंदर में जो बड्स फॉर्म हो रहे थे, हमने उसे क्या बोला था, जेम्यूल्स बोला था, जेम्यूल्स बोला था, हाँ जेम्यूल्स बोला था, वेरी गुड श्याम, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होगा, बडिंग एंड जेम्यूल्स के थ्रू, जेम्यूल्स ये बडिंग भी करवाते हैं, जैसे इसका एग्जांपल अपन लेते हैं हाइड्रा, देखो अगर आप हाइड्रा देखते, हाइड्रा इधर नहीं आएगा है ना, स्पॉन्जेस में देखो आप, स्पॉन्जेस में कैसा रहेगा कि स्पॉन्जेस कैसे हैं, यहाँ पे बर्ड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल बर्ड्स फॉर्म करेंगे ताकि दूसरे स्पॉन्जेस और आ जाए हमारे, बट कैसा रहता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे produces internal birds, okay, they produces internal birds, this internal birds are known as gemmules, okay, this internal birds are known as gemmules. Now fertilization is internal, fertilization is internal, ये अगर हमारे दो स्पॉन्जेस है, ठीक है, एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगा, या हो सकता है कि एक साथ हो, ठीक है, तो हमारे मेल और फीमेल्स में क्या होंगे, एक मेल गैमेट्स यहाँ से प्रोड्यूस होंगे और यहाँ की तरफ चले जाएंगे, यहाँ के फीमेल गैमेट से फ्यूज होंगे ना, ये बॉडी के अंदर हो रहा है, इसीलिए हमने इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला है, ठीक है, बॉडी के अंदर हो रहा है इसलिए हमने इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला है, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या होगा, लार्वा फॉर्म होगा, जब भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोले हैं तो आपको यहाँ पे एक लार्वल स्टेज होगी, ऐसा आपको कंसिडर करना है, लार्वल स्टेज होगी, ठीक है, ऐसा आपको कंसिडर करना है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा फॉर्म होगा, ठीक है। इट हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ रीजनरेटिंग कैपेसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, it can be regenerated, it has highest degree of regenerating capacity, clear, clear, clear है क्या, वापस रिपीट करना है, ओके, मांशु को क्लियर है, नेहा को क्लियर है, ग्रेट, आगे बढ़े। एक बार नयन को एक बार समझना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बेटा, रिप्रोडक्शन बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, असेक्सुअल में बडिंग होगी यानी कि हमारे स्पॉन्जेस में बड्स फॉर्म होंगे, लेकिन जब भी हमारा अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में इंटरनल बर्ड्स जिसे हम जेम्यूल्स बोलते हैं, यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है, जिसे हम जेम्यूल्स बोलेंगे, इंटरनल बर्ड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, दो हमारे एक मेल गैमेट्स रहेंगे और फीमेल गैमेट्स हमारे फीमेल सेल्स ऐसे फीमेल बॉडी में चले जाएंगे, मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, अंदर में फर्टिलाइजेशन होगा हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट रहेगा यानी यहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट रहेगी, लार्वल स्टेज प्रेजेंट रहेगी, इनका रीजनरेशन कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए यहाँ लिखा है हाईएस्ट डिग्री ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट इन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। बेटा डायरेक्ट में डायरेक्टली एग्स हमारे आ जाएंगे या फिर हमारे डायरेक्टली एक इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट में डायरेक्टली कोई इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा।
क्लासेस देखो पॉरीफेरा के, ठीक है, क्लासेस देखो। हमारे जो पॉरीफेरा है, ठीक है, कैलकेरिया, वन क्लास ऑफ पॉरीफेरा इज कैलकेरिया, ओके। इसका एग्जाम्पल है स्काइफा एंड ल्यूकोसोलेनिया, स्काइफा एंड ल्यूकोसोलेनिया। पास्ता जैसे नहीं दिख रहा है किसी को? हाँ, पास्ता जैसा नहीं दिख रहा है क्या? आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, सब सो गए क्या फोन चालू रख के? ठीक है, नाउ डेमो स्पोंजिया, ठीक है, एग्जाम्पल इज स्पॉन्जिला एंड यू स्पोंजिया। स्पॉन्जिला के बारे में मैंने कुछ बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला भी था। स्पॉन्जिला क्या होता है? स्पॉन्जिला एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्जिला, कौन बताएगा? बोलो। शाम कहाँ चले गए? स्पॉन्जिला क्या थे हमारे? फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस थे, है ना? स्पॉन्जिला जो थे हमारे फ्रेश वाटर, हाँ मोहित, फ्रेश वाटर थे, वेरी गुड। देन हेक्साटिलिनिडा, एग्जाम्पल इज यूप्लेक्टेला एंड हैलोनीमा, ओके, यूप्लेक्टेला एंड हैलोनीमा। ये एग्जाम्पल्स, क्लासेस, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, आपके एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में आते हैं। अच्छा, अभी स्पॉन्जेस आया तो आज का एक क्वेश्चन लिखो स्पॉन्जेस के ऊपर। व्हाट इज लूफा स्पॉन्ज? व्हाट इज लूफा स्पॉन्ज? ठीक है, लूफा स्पॉन्ज। स्पॉन्जिलिया इज ऑल्सो अ बाथ स्पॉन्ज, है ना, नहाने के लिए जो स्पंज यूज करते हैं ना, जनरली दिस इज स्पॉन्जिलिया, ऑल्सो नोन एज bath sponge, spongilia, spongilla is also known as bath sponge. Okay, Euspongia is a bath sponge. Okay, thank you Sham. Euspongia is known as bath sponge. Okay, Euspongia is known as bath sponge. Spongilia is fresh water sponge. And your question is, what is loofah sponge? Okay, what is loofah sponge? Thank you Sham, thank you. Okay. अच्छा, ये मेमोनिक आपके लिए है, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने इंपॉर्टेंट वाले, साइकॉन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिलिया, ओके। हाँ, सी यहाँ लिखा हुआ यूस्पोंजिया इज अ बाथ स्पंज, ओके, स्पॉन्जिलिया इज फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है। मेमोनिक आपको याद रखना है, और बाई चांस इसमें मेरा ही नाम आ गया, पता नहीं क्यों, कोई चिढ़ाएगा नहीं, ओके, ठीक है। उसके बाद है सिलिंट्रेटा, ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करें सिलिंट्रेटा। टाइम है हमारे पास 15 मिनट है और सिलेंट्रेटा, इसका पुराना नाम है सिलेंट्रेटा, न्यू नाम है निडेरिया। अरे निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा, ठीक है, ये तो फटाफट हो जाएगा हमारा अभी, ठीक है। टिश्यू ग्रेड है, ठीक है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी है, ठीक है। रेडियल या फिर बाई रेडियल सिमेट्री है, हाँ, पिटाई होगी नयन की, चढ़ाओ नहीं,
डिप्लोब्लास्टिक है ना, यानी कि 2 जर्म लेयर है, 2 जर्म लेयर्स, ठीक है। हैबिटेट मेजॉरिटी आर मराइन, फ्यू आर फ्रेश वाटर्स, ओके, मेजॉरिटी आर मराइन, फ्यू आर फ्रेश वाटर। चलो अभी आपको ये सारे टर्म्स याद हो गए ना, यानी ये बहुत इजीली हमारा आगे का चैप्टर हो जाएगा। ना बॉडी कैविटी, इट हैज अ लार्ज बॉडी कैविटी, ठीक है, इट हैज अ लार्ज बॉडी कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और सिलेंटेरॉन, ठीक है। अब यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी आई है, तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या होगी, ये हमारा है एपिडर्मल रीजन, ओके, ये एपिडर्मल रीजन है। इसके बाद यहाँ पे एक प्रेजेंट रहेगा गैस्ट्रोडर्मिस, एक लेयर प्रेजेंट रहेगी जिसे हम बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मिस, and this cavity is known as, this cavity covered by gastrodermis is known as gastrovascular cavity. ठीक है, this cavity covered by gastrodermis is known as gastrovascular cavity, ठीक है। अच्छा, निडेरिया का बॉडी प्लान कैसा था, हमारा बॉडी प्लान यहाँ पे लिखा नहीं है, बताओ बॉडी प्लान कैसा था। अच्छा, स्पॉन्जेस का बॉडी प्लान कैसा था और निडेरिया का बॉडी प्लान कैसा है, ये दोनों चीजें बताओ मुझे। स्पॉन्जेस का कैसा था, सबसे पहले तो सेल एग्रीगेट था, है ना, सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट स्पॉन्जेस का था। निडेरिया हमारे सिलिंट्रेटा के कैसे है, सिलिंट्रेटा के कैसा है बॉडी प्लान। टिश्यू लेवल बेटा वो तो ऑर्गेनाइजेशन है शाम, टिश्यू लेवल इज ऑर्गेनाइजेशन, आई एम आस्किंग अबाउट बॉडी प्लान। नो नो नो, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसमें क्या रहता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इन द सेंस हमने देखा था कि एक ही ओपनिंग रहती है एलिमेंट्री कैनल की, सिंगल ओपनिंग इन एलिमेंट्री कैनल, है ना, सिंगल ओपनिंग, हाँ वो हाँ देखो यहीं से फूड आता है, यहीं से फूड एंटर हो रहा है और यहीं से इसी कैविटी से वेस्ट जो है हमारा वेस्ट मटेरियल है वो एग्जिट भी हो रहा है। So this is known as blind sac cavity. Okay, blind sac cavity. Oh, sorry, blind sac body plan. Blind sac body plan. ठीक है। इनके जो नर्वस सिस्टम है, ये जो आपको नर्व्स दिख रहे हैं, वो किसी नेट की फॉर्म में है ना, जैसे हमारा फिश नेट होता है उस तरह से, है ना। नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व नेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज फॉर्म इन नर्व नेट, ठीक है, यानी कि फिश नेट की तरह होते हैं। ये रहे उसके नर्वस सिस्टम वाला डायग्राम। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, है ना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी आउटसाइड द सेल, इंट्रा सेल्यूलर यानी इनसाइड द सेल। डाइजेशन जो होगा वो हमारा एक आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड द सेल भी हो सकता है। अभी हमने पढ़े ओनली वन ओपनिंग इन द बॉडी, द माउथ, ठीक है, एक ही ओपनिंग रहेगी, इसलिए हमने उसे बोला है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। सराउंडेड बाय रिंग ऑफ टेंटेकल्स, अब ये टेंटेकल्स देखो, ये जो ये टेंटेकल्स है हमारे, ठीक है, ये जो है हमारे टेंटेकल्स है। हमारे टेंटेकल्स फूड कैप्चर करने में काम करेंगे, फूड कैप्चर करने में, फूड कैप्चर करने में हमारे टेंटेकल्स मदद करेंगे, ठीक है। इसी को हम स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं, यहाँ पे जो प्रेजेंट रहेंगे इसे हम स्टिंगिंग सेल्स भी बोलेंगे, ठीक है, निमेटोसिस्ट भी बोलेंगे, नीडोब्लास्ट भी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं मैं, नेक्स्ट स्लाइड में है ये अच्छे से और दिया हुआ है। प्रोटेक्शन भी करते हैं, हाँ, टॉक्सिक भी रहते हैं, हाँ, ये सारी चीजें करते हैं हमारे टेंटेकल्स, प्रोटेक्शन भी करते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं। टॉक्सिक और पॉइजनस इसलिए होते हैं बेटा ताकि वो अपने प्रे को मार सके, है ना, प्रे को मार के अपने पास लेकर आ सके।
सी स्टिंगिंग सेल्स, nematocyst also known as nematocyst, also known as nidoblast, present in ectoderm, help in capturing prey. ठीक है, प्रे कैप्चर करने के लिए हेल्प करेंगे। देखो कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे टेंटेकल्स है, यहाँ का जो यहाँ का एक पोर्शन ले लिया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एपिडर्मिस है, ये गैस्ट्रोडर्मिस है, इसके अंदर की जो कैविटी है वो हमारी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी रहती है। ठीक है, वो हमारी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी रहती है। उसके बाद ये एक सेल को हमने निकाला है। ठीक है, एक सेल को हमने निकाला, यहाँ पे भी सेम सेम, ये भी हमारा वही सेल्स है। ठीक है, वहां से हमने देखा निमेटोसिस्ट निकाला। अच्छा, बाहुबली पता है आपको? बाहुबली है ना, उसमें वो था ना भल्लाल देव, उसके पास था, देखो ऐसा, भल्लाल देव के पास था ऐसा कुछ तो भी, जैसे फेंकता था और यहाँ पे से इतना बड़ा दूर जाके वो अपने दुश्मनों को मार गिराता था। बाहुबली नहीं देखी है श्याम ने? बिल्कुल ऐसे ही हमारे हमारे जो हाइड्रा वगैरह है, ये हमारा वैसे ही करेगा। जब से जरूरत नहीं होगी तो हमारा जो निमेटोसिस्ट है, निमेटोसिस्ट सेल जो यहाँ पे जो हमारा विप लाइक फ्लैजिलम है, ये अंदर ही रहेगा, टेंटेकल्स। हाँ, भल्लाल देव देखा था। ठीक है, वही वही। तो वो बाद में क्या करेंगे, जब उन्हें प्रे कैप्चर करना रहेगा, यहाँ पे उनका एक प्रे जब कैप्चर करना रहेगा, वो यहाँ से निकल के एक अपना फ्लैजिलम बाहर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन इज थ्रू जनरल सरफेस ऑफ बॉडी। ओके, रेस्पिरेशन भी जनरल सरफेस ऑफ बॉडी से ही होगा हमारे। उसके बाद रिप्रोडक्शन, यहाँ पे बहुत सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना, बहुत असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहाँ से हमारे अलग से एक स्पर्म सेल्स जा रहे हैं, एग सेल्स जा रहे हैं, बाहर अंदर वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। यहाँ यहाँ जो लार्वल स्टेज प्रेजेंट है वो ये हमारा प्लानुला है, प्लानुला इज द लार्वल स्टेज। ओके, प्लानुला इज द लार्वल स्टेज। उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ जिसे हम मेटाजेनेसिस बोलेंगे, वो भी होगा पॉलिप और मेड्यूसा में। ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। पॉलिप, जनरली पॉलिप ये ऐसा रहेगा और मेड्यूसा जो है वो उल्टा रहेगा। ठीक है, पॉलिप जो है हमारा सीधे की तरफ रहता है, तो उसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मेड्यूसा। अगर पॉलिप से मेड्यूसा फॉर्म हो रहा है, पॉलिप से मेड्यूसा फॉर्म हो रहा है, तो वो हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल, स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी बिगड़ गई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेड्यूसा से पॉलिप हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है। ओके, इतना क्लियर है? ये दोनों सेम ही है। हाँ, ये दोनों सेम ही है। ये है उसके टेंटिकल्स, यहाँ पे हमारे टेंटिकल्स प्रेजेंट है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये रही हमारी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ये हमारा माउथ, तो यहाँ पे भी माउथ है। इट्स जस्ट दैट कि ये उल्टा है, बस बस उतना ही डिफरेंस है इनमें। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म देखने मिलेगा आपको सिलेंट्रेटा में। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि टू और मोर टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एक सिंगल स्पीशीज का एक ही लाइफ साइकिल में देखने मिलता है आपको। ठीक है, एक ही लाइफ साइकिल में एक ही स्पीशीज का मोर देन टू टाइप्स देखने मिलता है। दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, जिसमें एक है हमारा पॉलिप जो कि सेसाइल रहेगा, सेसाइल इन द सेंस अटैच्ड, कांट मूव, सिलेंड्रिकल बॉडी, असेक्सुअल। ठीक है, इसमें से असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा इससे। मेड्यूसा जो है वो फ्री स्विमिंग रहेगा, अम्ब्रेला के शेप का रहेगा और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाएगा वो। ठीक है क्या?
एग्जाम्पल्स याद करो, उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें लेंगे, ठीक है। क्लासेस क्या है हमारे, हाइड्रोजोआ, ओके, हाइड्रोजोआ। इसमें एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा, ओबेलिया एंड पाइसेलिया, ठीक है, हाइड्रा, ओबेलिया एंड पाइसेलिया। तो पाइसेलिया का एक कॉमन नाम है, लिख के रखना, ये क्वेश्चन एक और आपका आज का, इसका कॉमन नेम क्या है, ठीक है। स्काइफोजोआ, एग्जाम्पल इज ओरेलिया, एंथोजोआ, मेट्रिडियम एंड एल्कोनियम, मेट्रिडियम एंड, अरे वाह, शाम को तो पता ही है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, यस यस बेटा, यस। ऑरेलिया, ऑरेलिया इज जेलीफिश है ना, ऑरेलिया इज जेलीफिश, ऑरेलिया इज जेलीफिश। सी मेमोनिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर है ना, आपको, आप तो रिलेट भी कर पाओगे। फिजिक्स ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में एडम और जॉर्ज ने पेन हाइड किया है ना। फिजिक्स पाइसेलिया, ऑब्जेक्टिव ओबेलिया, मेएंड्रिया मेन, ओके, एडमेसिया एडम, ऑरेलिया और जॉर्जिनिया जॉर्ज, पेनिट्यूलाटा पेन, हाइड्रा, ओके। यहाँ पे इनके कॉमन नेम भी दिए हुए हैं, जॉर्जियाना का सी फैन है ना, ये हमारा सी पेन है, पेनिट्यूलाटा, मेंड्रेनिन हमारा ब्रेन कोरल है, ब्रेन की तरह दिख रहा है ये, ठीक है। फाइजिलिया अभी बताया, एडेमेसिया यानी सी एनिमोन है ना, वो कौन सी मूवी थी यहाँ पे सी एनिमोन वाली, नीमो, नीमो वाली है ना, नीमो वाली कोई मूवी थी है ना हमारी, फिश वाली, सी एनिमोन वहां देखने मिला था हमें। ऑरेलिया जेलीफिश, याद रहेगा एग्जांपल्स आप लोगों को, एग्जांपल्स याद रहेंगे। ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तीनों कोरा, ठीक है। हाँ, फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग नीमो, यस, फाइंडिंग नीमो, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है।